Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the nomenclature, classification, and the physical properties of the cyanides and the isocyanides. So first of all, we will discuss about the ambident groups, because these two groups, that is the NC, that is the isocyanide, and the CN, that is the cyanide, they come in the category of the ambident groups because they have the two attacking site, because they have the two binding site. In the NC, the lone pair electrons are present both on the nitrogen and the carbon. So the bonding can take place either through the carbon atom or through the nitrogen atom. If the bonding takes place through the nitrogen atom, the species thus formed called as the isocyanides, and the group is the NC group. If the bonding takes place through the carbon atom, then the group is the cyanide group, and the compounds thus formed called as the cyanides. So what are the ambident groups? The groups which have the two attacking sites, which have the two binding sites, means the groups which have the two sides through which it can be linked to the central atom are called as the ambident groups. For example, CN group, it has the two binding site. These two binding sites are the C atom and the nitrogen atom. Means that CN group can be attached to the central atom either through the carbon atom or through the nitrogen atom. If it attached through the C atom, then it is the CN group, that called the nitriles. You called it as the nitriles. If it attached through the nitrogen atom, then these called isonitriles. Now, what is the definition of nitriles? The species which are formed by the replacement of one or more H atom from the aliphatic hydrocarbons or the cyclic hydrocarbons. The cyclic hydrocarbons may be the alicyclic or maybe the aromatic one. If you remove the H atom from all of these, for example, we have taken the example of methane. In methane, on the carbon atom, on the central carbon atom, there are the four H atom. If we replace one of the H atom by the CN group, means the attachment of that group takes place through carbon atom. So that is the cyanide group. So such compound called as the nitriles or the cyanides. आप इसे नाइट्राइल भी कह सकते हैं और आप इसे साइनाइड्स भी कह सकते हैं. Isonitriles. So what are isonitriles? The definition of isonitrile is like that of nitriles. In the species which are formed by the replacement of one or more H atom from the aliphatic hydrocarbons or from the cyclic hydrocarbons, these cyclic hydrocarbon may be the alicyclic or the aromatic. By which group? By the isocyano group. By the isocyano group. For example, here is the case. We have taken the methane. In methane, here is the central atom is carbon and the neighboring atoms are hydrogen atom. If we replace one of the H atom by the NC group, means the group attached to the central carbon atom through the nitrogen atom. So it is called as the isocyanides or the isonitriles. So these are the definition of nitriles and the isonitriles. And these two group, how these two group related with each other? They are the ambident groups. These are the ambident groups. In case of the coordination compound chapter, जो आपका coordination compound का जो आपका chapter उसमें आपने पढ़ा था about these different type of ligands. Ligands are the electron rich species which can donate their electron pair to the central metal atom by forming the coordinate bond. तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो आपके लिगेंड्स होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, तो ये जो आपके दो ग्रुप अभी हमने पढ़े, आपका CN भी हो सकता है, साइनाइड आयन, CN नेगेटिव आप पढ़ते हैं वहां पे, और आपके आइसोसाइनाइड भी हो सकता है. सो दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. सो दीज आर दी एम्बिडेंट लिगेंड इन दैट पर्टिकुलर केस. उस केस के अंदर आप इन्हें कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स, और यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन्हें कह रहे हैं एम्बिडेंट ग्रुप्स, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आपके ये साइनाइड आयन CN नेगेटिव और जो NC होते हैं, दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम. और वो मेटल एटम कौन होता है? जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग कर रहे हैं इधर थ्रू द कार्बन एटम और थ्रू द नाइट्रोजन एटम, जो आपका ये ग्रुप है आइसोसाइनो और द साइनो ग्रुप, जो ये अटैच हो रहे हैं, किससे अटैच हो रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं. दे अटैच टू द carbon atom of the alkyl group or the cyclic group, that may be the alicyclic or the aromatic one.
Now, what are the types of nitriles? The nitriles may be classified in the following ways. They may be the aliphatic nitriles. So what are the aliphatic nitriles? Aliphatic nitriles are those nitriles in which the carbon एटम कंटेन बोलो कौन CN ग्रुप, और कार्बन एटम किसका हो, वो किसी एल्काइल ग्रुप का हो। तो मींस इन अदर वर्ड आप डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने अभी पीछे लिखी थी कि द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप बाय द CN ग्रुप साइनो ग्रुप आर कॉल्ड एज द एलिफेटिक और द एसाइक्लिक नाइट्राइल्स। आपके कोई एल्काइल ग्रुप हो आपके पास, जैसे हमने मीथेन लिया, मीथेन का आपने H रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, CN से, तो जो कंपाउंड बने वो आपके क्या कहलाएंगे, दीज आर द एलिफेटिक और द एल्काइल नाइट्राइल्स। नेक्स्ट वन आर द साइक्लिक नाइट्राइल्स। साइक्लिक नाइट्राइल्स आर दोस nitriles in which the H atom is replaced from the cyclic group. The H atom from the cyclic group is replaced by the CN group. अगर आपके पास कोई cyclic group है, for example आप इस केस में देखें कि कोई एलिसाइक्लिक आपके हाइड्रोकार्बन था, इस एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का आपने कोई भी एक H है वो किससे रिप्लेस किया है, CN से, सो इट इज ए साइक्लिक नाइट्राइल। तो ये साइक्लिक नाइट्राइल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट में आप देखें, ये भी क्या है आपके सामने, बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग का एक H हटा के आपने क्या लगा दिया, CN, तो ये भी एक साइक्लिक नाइट्राइल ही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एर एल्काइल नाइट्राइल्स। एर का मतलब एराइल ग्रुप, एल्काइल मींस एल्काइल ग्रुप, और आगे कौन है, नाइट्राइल मींस साइनाइड ग्रुप भी है। तो इसमें क्या होगा, आपके वो कार्बन जिसके ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप भी हो, उसी कार्बन के ऊपर कोई क्या होना चाहिए, आपका एराइल ग्रुप भी होना चाहिए, जैसे बेंजीन रिंग भी होना चाहिए, और उसी कार्बन पे कौन अटैच हो, आपके CN हो, तो आपके कौन कहलाते हैं वो, alkyl nitriles. In other word, you can define it as the compounds which are formed by the replacement of one or more H atom, कहां से, from the side chain of the cyclic group by the cyano group are called as the alkyl nitriles. फिर जो आपके cyclic nitriles होते हैं, they may be further of following types. कौन कौन से, वो एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एलिसाइक्लिक कौन होंगे, जब आप एलिसाइक्लिक जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, आप उसका H रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, CN के द्वारा, तो आपके एलिसाइक्लिक नाइट्राइल्स बन जाएंगे। सो द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ द साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काइल, तो आपके किससे, बाय द साइनो ग्रुप आर कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक नाइट्राइल्स। तो ये आपके पास कोई एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स था, उसका आपने एक H देखो रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया, देखो वहां पे आपके CN हमने लगा दिया, बोलो कौन लगा हुआ है यहाँ पे, ये CN। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एरोमेटिक नाइट्राइल्स। तो एरोमेटिक नाइट्राइल्स कौन होंगे, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आप अटैच जो आपके जितने भी हाइड्रोजन हैं उनमें से कोई भी एक H को किससे रिप्लेस कर दें, CN से, तो भी आपके एरोमेटिक नाइट्राइल्स होंगे। या you replace the H atom from the side chain attach on the benzene ring by the cyano group, these also called as the aromatic nitriles। जैसे दोनों एग्जांपल में देखें, सेकंड वन वाले में बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है आपका CN, और जो फर्स्ट केस था उसमें आपके ये इनडायरेक्टली अटैच है। देखो बेंजीन रिंग दोनों ही केस में है, तो दोनों ही एरोमेटिक हो गए, लेकिन एक केस में CN डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, फर्स्ट केस के अंदर CN बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच नहीं है, तो मीन्स उसकी साइड जो बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन थी उस कार्बन से आपका CN ग्रुप अटैच है। तो मीन्स आपका जो CN ग्रुप है या तो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग से या इनडायरेक्टली अटैच हो, मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर जो साइड चेन लगी हुई है उस कार्बन के ऊपर अटैच हो। इन बोथ द केसेस द कंपाउंड कॉल्ड एज द एरोमेटिक नाइट्राइल्स, कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक नाइट्राइल्स कहलाएंगे आपके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, आपके जो साइनाइड हैं इनकी फर्दर। तो आपके जो साइनाइड्स हैं, जो नाइट्राइल्स हैं, इनकी फर्दर हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जो नाइट्राइल्स हैं इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप एल्कोहल्स के केस में आप क्लासिफाई आपने किया, नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में आपने किया, एल्काइल हैलाइड्स के केस में किया आपके, तो आपके कौन हो जाएंगे, वो आपके नाइट्राइल्स में भी दा बोलो कौन कौन बन सकते हैं आपके, दे में द प्राइमरी नाइट्राइल्स, वो कौन हो सकते हैं आपके, प्राइमरी नाइट्राइल हो सकते हैं, द सेकेंडरी नाइट्राइल में द टर्शियरी नाइट्राइल। तो व्हाट आर द प्राइमरी नाइट्राइल्स, प्राइमरी नाइट्राइल्स आर दोज कंपाउंड इन व्हिच द कार्बन कंटेनिंग CN group, the carbon containing CN group is attached with one or no carbon atom। आप इस एग्जांपल में देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर CN है, वो कार्बन एक भी एल्काइल ग्रुप से अटैच नहीं है, एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी नाइट्राइल। सेकंड एग्जांपल में देखें,
वो कार्बन जिस कार्बन के ऊपर बोलो कौन है आपका CN ग्रुप अटैच है। ये कार्बन बोलो किससे अटैच है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी नाइट्राइल। So what are the primary nitriles? The compounds in which the carbon containing cyano group is linked either with one carbon atom or no carbon atom are called as the primary nitriles. Similarly, what is the definition of secondary nitrile? Secondary nitrile की definition देखिए उससे पहले आप ये example देख के और बता दें कि ये जो एग्जांपल है ये प्राइमरी नाइट्राइल का है, सेकेंडरी का, इसमें भी आप देखें वो कार्बन जिससे बोलो कौन अटैच है आपका CN। ये कार्बन देखो एक ही कार्बन से अटैच है, ये साइक्लोप्रोपाइल जो ग्रुप है उसके जो मैंने अभी रेड कलर से लिख दिया C, इसी कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी नाइट्राइल। अब नेक्स्ट को देखें, इसमें भी वो कार्बन जिसके ऊपर बोलो कौन अटैच है आपका CN ग्रुप अटैच है। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, बेंजीन वाले कार्बन से देखो डायरेक्टली अटैच है एक ही कार्बन से। सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी नाइट्राइल। तो ऐसे एग्जांपल आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द नाइट्राइल, whether the given nitrile is a primary nitrile or the secondary nitrile or the tertiary nitrile। तो इस टाइप से आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी नाइट्राइल्स। सो व्हाट आर दी सेकेंडरी नाइट्राइल्स? आपने प्राइमरी नाइट्राइल की डेफिनेशन में क्या लिखा था, देखो ये जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पे वायलेट कलर से हमने दिखा रखा है, अटैच विद द कार्बन कंटेनिंग CN ग्रुप इज अटैच्ड विद वन और नो कार्बन एटम। तो अब हमारी यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आना चाहिए सेकेंडरी नाइट्राइल की डेफिनेशन में, द कंपाउंड्स इन व्हिच द कार्बन कंटेनिंग साइनो ग्रुप इज लिंक्ड विद या अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स, अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी नाइट्राइल्स। आप एग्जांपल देखें, इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल द कार्बन कंटेनिंग CN group is further attached with 2 carbon atom, further attached with 2 alkyl group are सेकेंडरी नाइट्राइल्स। तो ये सेकेंडरी नाइट्राइल का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट में देखें, in that particular case also the carbon containing CN group is further attached with 2 carbon atom, further attached with 2 carbon atoms, so it is also an example of secondary nitriles। अब next case में देखें, here the carbon containing CN group is attached with देखो वन टाइम कार्बन और here is the double bond, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो attached 3 times with the carbon atom, so it is an example of tertiary nitrile। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे ये प्राइमरी नाइट्राइल, ये सेकेंडरी नाइट्राइल का एग्जांपल नहीं है, so it is an example of tertiary nitrile। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें टर्शरी नाइट्राइल की कैटेगरी में। तो मैंने बताया ये जो लास्ट एग्जांपल आया ये हमारा टर्शरी नाइट्राइल है, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर CN है वो 3 टाइम कार्बन से अटैच था, 1 टाइम विद द सिंगल बॉन्ड एंड 2 टाइम विद द सेम कार्बन एटम on the other side, so it is an example of tertiary nitrile। So what is the definition of tertiary nitrile on that basis? The compounds in which the carbon containing CN group is attached with 3 carbon atom or attached 3 times with a carbon atom। आपको ध्यान होगा ये हमने पहले भी ऐसी बातें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो कौन सी बात हमारे इस एग्जांपल बेंजोनाइट्राइल जो हमारा एग्जांपल था उसमें कौन सी बात हमारे काम आई, क्या ये जो वर्ड यहाँ पे हमारी इस डेफिनेशन में काम आया कि अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, नो अटैच्ड 3 टाइम्स विद द कार्बन एटम। तब आप इस डेफिनेशन को, इस एग्जांपल को आप समझ पाते हैं। अब पहले इस एग्जांपल को और देखें, को द कार्बन कंटेनिंग CN is attached with 3 alkyl group or attached with 3 carbon atom, so it is an example of टर्शरी नाइट्राइल। यहाँ पे तो ये डेफिनेशन बिल्कुल फिट हो गई इसके अंदर कि ये अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम। लेकिन जो बेंजोनाइट्राइल था, इससे पहले वाला जो ये एग्जांपल था बोलो किसका था, ये बेंजोनाइट्राइल। इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो वो जो बात हम लिखते हैं कि अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, वो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे फिट एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी पड़ती है, अटैच 3 टाइम विद द कार्बन एटम। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं IUPAC नेमिंग। अब हम क्या देखेंगे अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ दीज नाइट्राइल्स और द आइसोनाइट्राइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द साइनाइड और द नाइट्राइल्स। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है आपके साइनाइड और द नाइट्राइल, दैट इज अ CN ग्रुप। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब कंप्लीट बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं, देखो 1 कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विद द एल्काइल और द एराइल ग्रुप और द साइक्लोएल्काइल ग्रुप। देखो ये जो सिंगल बॉन्ड हमने लॉन्ग करके दिखाया, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप अटैच है, दैट में भी द आपका कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे R हम लिख दें यहाँ पे,
R की वैल्यू देखो कुछ भी आप लिख सकते हैं, दैट में भी CH3 फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं CH3 लिख दूं, यहाँ पे आप कोई देखो बेंजीन रिंग, देखो मैं लगा लगा के आपको दिखा रहा हूँ बार बार, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग भी देखो आप ऐसे अटैच कर सकते हैं, देखो इस टाइप से। तो मीन्स ये इसकी ओपन फॉर्म है। कार्बन के देखो 4 बॉन्ड हमने कंप्लीट करने, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ बनाए और 1 उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जो यहाँ पे अटैच होगा, तो ये ओपन रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेमिंग का। इफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज अ CN, इफ इट एक्ट एज द प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, हाउ यू विल नेम इट, आप इसको कैसे नेम करेंगे? यू विल नेम इट बाय नाइट्राइल। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी आपका सफिक्स होगा वो नाइट्राइल होगा। लेकिन अगर ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की तरह काम करे तो आप क्या कहेंगे? दैट इज अ साइनो। तो आप इसे साइनो से प्रेजेंट करेंगे। अब जो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जब आप आईपैक नेमिंग करते हैं तो उस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पार्ट्स ही होते हैं। दैट फर्स्ट पार्ट इज द वर्ड रूट। What is word root? It tells about the number of the carbon atom present in the longest carbon atom chain containing the double, triple or the function group. That is the principal chain. Principal chain में कितने हैं कार्बन एटम, आप उसे कहते हैं वर्ड रूट, जो हमें बताता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स। ये हमें ये बताता है, टेल्स अबाउट वेदर द प्रिंसिपल चेन इज सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड, मींस वेदर देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड इन द प्रिंसिपल चेन और देयर इज ए डबल बॉन्ड और देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड और देयर इज बोथ डबल और द ट्रिपल बॉन्ड। इफ ओनली single bond is present in the principal chain, you will use ANE. If there is double bond in the principal chain, you will use ENE. If there are 2 double bond, you will use diene, 3 double bond triene, and so on. Triple bond is present, YNE. If both double or the triple bond present, you will use enine, ENYNE, enine. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कोई प्राइमरी फंक्शन ग्रुप तो नहीं। इफ इट इज प्रेजेंट, दैट इज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स। आफ्टर दैट, before the word root, you will add the primary prefix. Primary prefix tells about whether the principal chain is cyclic or the acyclic. If the principal chain is cyclic or the acyclic, if the principal chain is cyclic, you will add cyclo before the word root. If the principal chain is acyclic, you will not add the cyclo word before the word root. अब word root से पहले cyclo नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है secondary prefix. So what is the nature? What is the nature of all the groups? All the groups, all the substituents, all the functional group except the primary functional group which are directly attached on the principal chain carbon atom. Principal chain के जो carbon atom है, उन principal chain के carbon atom के ऊपर कितने सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं, कितने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, उन सभी की पोजीशन होती है आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स वाली जगह के ऊपर। कई बार आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं लाइक द NH2 ग्रुप, उनके अंदर क्या होता है कि आपके जो सब्सटीट्यूएंट हैं दे मे बी प्रेजेंट ऑन द नॉट ऑन द प्रिंसिपल चेन कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल देखो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे CH3 CH2 NH2। हमने आपको ऐसे बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ये प्रिंसिपल चेन है इसके देखो इस कार्बन एटम के ऊपर देखो मैंने यहाँ पे ये CH3 लगा दिया, सो दैट इज द सब्सटीट्यूएंट। देखो ये सब्सटीट्यूएंट है, ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल चेन थी, प्रिंसिपल चेन का आपने एक H हटाया, वहां पे CH3 लगाया, दैट इज द सब्सटीट्यूएंट, दैट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सब्सटीट्यूएंट है प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन एटम के ऊपर ही प्रेजेंट हो, दे मे बी प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लाइक इन दैट पर्टिकुलर केस। देखो CH2 और यहाँ पे हमने क्या किया, देखो जो NH2 ग्रुप था उसका एक H हटा के हमने उसके ऊपर CH3 लगा दिया, सो दैट इज आल्सो ए सब्सटीट्यूएंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल चेन कार्बन एटम। तो यानी ये जो छोटी छोटी बातें आपसे ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं क्या वो हमेशा ही प्रिंसिपल चेन के कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ये जरूरी नहीं है। लाइक इन दैट पर्टिकुलर केस, यहाँ पे जो आपका सब्सटीट्यूएंट है प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैच नहीं है। जो आपका फंक्शनल ग्रुप था, जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है NH2, उसका एक H हटा के उसके ऊपर हमने ये आपका सब्सटीट्यूएंट अटैच किया है। तो ये बातें आप रखेंगे ध्यान। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप इसके अंदर प्रिंसिपल चेन आपने सर्च आउट कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो प्रिंसिपल चेन जो है उसके अंदर टोटल कार्बन कितने होंगे? 4, क्योंकि जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन भी हम काउंट करेंगे इन द प्रिंसिपल चेन। सो द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन आर 4 कार्बन एटम्स, सो यू विल यूज द वर्ड रूट दैट इज द ब्यूट।
After that, there is only single bond in the principal chain in between the carbon atom of the principal chain. So you will add the ANA as a primary suffix. After that, you will find out the primary functional group, that is the secondary suffix, that is a CN group. You will, because there is only one functional group and that alone functional group will act as the primary functional group. So what is the position of primary functional group? That is a secondary suffix. And here the primary functional group is the CN. So what is the name of that group? If it acts as the primary functional group, you will name that nitrile. So add the nitrile after the ANE. As the first alphabet of the nitrile, that is the N, nitrile का N जो है, that is not a vowel. वो vowel नहीं है, इसलिए ANE के E को आप drop नहीं करेंगे. You will not drop the E of the ANE. So the name of that particular compound is butane nitrile. Name is butane nitrile. और जो कॉमन नेम होगा इसका वो क्या होगा? प्रोपाइल साइनाइड. सो दैट इज द CN जो हमने लिखा, दैट इज द कॉमन नेम. जो हमने ये लिखा है देखो C.N, ये कोई साइनाइड ग्रुप नहीं है, दैट इज द, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पे कॉमन नेम. कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज प्रोपाइल साइनाइड. प्रोपाइल साइनाइड. कॉमन नेम लिखते वक्त सिर्फ जो प्रिंसिपल चेन के जो CN को छोड़ के बचे हुए कार्बन है उनकी संख्या को काउंट किया जाता है, उसके नंबर को देखा जाता है. वो 3 है तो प्रोपाइल साइनाइड, दैट इज द कॉमन नेम. इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल ले उससे पहले नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो बोलो कैसे भी और प्रेजेंट हो सकता है. ये जो नाइट्राइल है ये ऐसा भी प्रेजेंट हो सकता है कि दैट CN इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, दैट इज ऑन द एलिसाइक्लिक, जो आपके हाइड्रोकार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच हो. देखो चीज तो वही है, देखो CN उसी टाइप से रिप्रेजेंटेशन होगी. लेकिन अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, इफ ए CN ग्रुप इज अटैच ऑन द एलिसाइक्लिक कंपाउंड रिंग, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसके रिंग के ऊपर अटैच है, तो उस वक्त आपका जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है जो CN है इसको आप कार्बोनाइट्राइल कहेंगे, और सेकेंडरी है तो सिमिलरली वही साइनो. अब देखो इस केस में पर्टिकुलर आप देखें यहाँ पे ये आपके कौन है, बोलो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल जो रिंग है इसके ऊपर कौन अटैच है, बोलो CN. अब जो आपकी जो प्रिंसिपल चेन है अगर हम इसको कहें तो कैसे बोलेंगे? अगर हम जो ये रिंग है आपका 6 कार्बन का जो रिंग है, अगर हम इसके कार्बन को देखें तो इनमें से कोई भी एक कार्बन CN वाला कार्बन नहीं है, नहीं है बिल्कुल. तो इट मींस इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल द कार्बन ऑफ द CN ग्रुप इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग. जो CN का जो कार्बन है वो पार्ट ऑफ द रिंग नहीं है. तो अब कैसे नेमिंग करें? तो उस वक्त इसको कार्बोनाइट्राइल कहेंगे. देखो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए. आगे क्या ऐड करेंगे, ANE, क्योंकि जो रिंग वाला जो कार्बन है, रिंग वाले जो कार्बन है उनके बीच में बोलो क्या, देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, तो आपने ANE लिखा. उसके बाद आगे लिख देंगे कार्बोनाइट्राइल. तो यहाँ पे CN के लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो इंक्लूड नहीं हुआ है आपके जो रिंग है उसके अंदर, आपका इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया कार्बो, मींस उसका कार्बन भी आ गया. आगे तो नाइट्राइल ही है, पहले भी हम नाइट्राइल यूज करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा कार्बो क्यों लिखा इस एक अलग से इस कार्बन के लिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं बना है. सो द नेम हियर इज हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. वो लोग क्या कहेंगे इसे, हेक्सेन साइक्लोनाइट्राइल. लेकिन क्योंकि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है इसलिए हमें साइक्लो वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स कौन हो गया, साइक्लो. सो व्हाट इज द कंप्लीट नेम हियर, दैट इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. तो ये इसका आईपैक नेम हो गया. उसके बाद ये नेक्स्ट देखो जो हमने अभी लिखा था जो प्रिंसिपल चेन थी इसका, इसमें देखिए हमने अब की बार बेंजीन रिंग ले लिया है यहाँ पे. तो बेंजीन रिंग लिया, उसी टाइप से बेंजीन रिंग के ऊपर जो CN ग्रुप है इसी टाइप से जो बेंजीन रिंग के जो कार्बन है, बेंजीन रिंग के बोलो कौन है, ये कार्बन, उनमें से कोई भी कार्बन CN का पार्ट नहीं है. CN वाला जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है. तो इसलिए अब हम कैसे बोले इसको, हम ऐसे बोलेंगे बेंजीन नाइट्राइल. बोलो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन नाइट्राइल, और यू कैन से द बेंजीनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इस टाइप से इनकी नेमिंग अलग से की जाती है. या आप इसे कह सकते हैं कॉमन नेम अगर हम इसका कहें तो फिनाइल साइनाइड, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है आपका जो बेंजीन रिंग है, इफ इट एक्ट एज ए ग्रुप देन इट इज कॉल्ड द फिनाइल ग्रुप, और CN साइनाइड है तो एक कॉमन नेमिंग हो गई. फिनाइल साइनाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोनाइट्राइल. देखो टेबल में पॉइंट नंबर 3 पे हमने अगला पॉइंट लिखा आइसोनाइट्राइल.
लिखते कैसे इनको, NC ओपन फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड C एंड वन ऑफ द बॉन्ड इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो आपको 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, आउट ऑफ दीज 3 बॉन्ड वन ऑफ द बॉन्ड इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस नाइट्रोजन इज द डोनर हियर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे वो डोनेट किए गए हैं कार्बन की तरफ, कार्बन इज द एक्सेप्टर हियर, इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर पहली बात है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन कार्बन के बीच, डोनर कौन था उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन था, इसलिए नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर कौन था, वो कार्बन था, इसलिए कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ये ना दिखाना चाहें तो आप कैसे दिखा सकते हैं, एन देखो 2 बॉन्ड एज सच आप दिखाएंगे और थर्ड बॉन्ड एरो लगा के आप दिखा देंगे सी, फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मीन्स आप इकट्ठा कभी नहीं लिखेंगे कि आप एरो भी दिखा दें और पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा दें, तो यानी दोनों ही रिप्रेजेंटेशन ठीक है, या तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाएं, कार्बन पे नेगेटिव, या आप नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 2 बॉन्ड सिंपल लाइन से दिखाएं और जो थर्ड बॉन्ड है वो एरो से दिखाएं, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एरो की डायरेक्शन होनी चाहिए नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इसको, यानी बोलेंगे कैसे, अगर ये प्राइमरी फंक्शन का काम करे तो आप इसे आइसोनाइट्राइल कहेंगे, और ये सेकेंडरी का काम करे तो आइसोसाइनो कह देंगे। अब लेते हैं एग्जांपल, आप इसमें देखें इसके अंदर जो टोटल आपके कार्बन कितने हो गए, जो प्रिंसिपल चेन के अंदर जो कार्बन है वो काउंट होगा इसका, तो टोटल उसी टाइप से ब्यूट हो गए, सिंगल बॉन्ड है कार्बन की चेन के अंदर, प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो ANE हो गया। और बोलेंगे आइसोनाइट्राइल, बोलो क्या बोलेंगे, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल का आई जो है वोवल है, इसलिए ANE के ई को ड्रॉप कर देंगे हम, तो इसलिए नाम बन जाएगा ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, या हम इसे कह सकते हैं प्रोपेन। ये दूसरा तरीका है, इसका एपिक नेमिंग ही है ये भी, लेकिन अगर कार्बाइल एमीन की फॉर्म में बोलेंगे तो कार्बाइल, कार्ब आ गया इसके अंदर, कार्ब आ गया, तो इसलिए NC का दूसरा नाम कार्बाइल एमीन है, और इसमें कार्ब आ गया, एक कार्बन आ गया, तो इसलिए बचा हुआ हिस्सा ही बोलेंगे, बचे हुए कार्बन बोलो कितने हो गए, आपके NC वाले कार्बन को छोड़ के कितने हो गए, 3 कार्बन, तो इसलिए प्रोपेन कार्बाइल एमीन कहेंगे। तो ध्यान रखें, प्रोपेन 3 कार्बन हो गए, प्रोप का मतलब 3, कार्बाइल एमीन में कार्ब आ गया, वो 4th कार्बन हो गया, इसलिए टोटल इस टाइप से दोनों ही इसकी आइपेक नेमिंग है। तो आइपेक नेमिंग आप जो आइसोसाइनाइड है इनकी आप कैसे करेंगे, आइसोनाइट्राइल वर्ड यूज करें तो भी आइपेक नेमिंग है आपकी, कार्बाइलेमीन करें तो भी आइपेक नेमिंग है, लेकिन आइसोनाइट्राइल अगर आप यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन के अंदर आएंगे, NC वाला कार्बन भी काउंट होगा। लेकिन अगर आप कार्बाइलेमीन को लेकर आइपेक नेमिंग लिखते हैं तो उस वक्त आपके जो NC वाला जो कार्बन है वो इंक्लूड नहीं होगा आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर, उसमें सिर्फ प्रोपेन ही लिखेंगे, प्रोपेन कार्बाइलेमीन, क्योंकि कार्बाइलेमीन में खुद कार्ब वर्ड आ गया। लेकिन अगर हम इसके लिखे कॉमन नेमिंग तो क्या करें, तो देखो हमने बताया था 3 तरह के नाम है, आइसोनाइट्राइल, कार्बाइलेमीन, दो तो यूज हो गए, बोलो एक कौन बच गया, आइसोसाइनाइड, तो ये इसका कॉमन नेम हो गया, देखो C.N का मतलब कॉमन नेम। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, बोलो क्या कहेंगे इसको, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम होगा, यानी NC ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के बचे हुए जो 3 कार्बन वो काउंट होंगे, तो प्रोपाइल हो गया, और आइसोसाइनाइड ये ग्रुप हो गया, सो दैट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये थी इसके आइपेक नेमिंग और इनकी कॉमन नेमिंग भी। तो आपने नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल्स की आइपेक नेमिंग भी देखी और कॉमन नेमिंग भी देखी, तो इस टाइप से आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चन कि नाइट्राइल्स जो कंपाउंड्स हैं दे हैव द हायर डाइपोल मोमेंट देन द आइसोनाइट्राइल्स, व्हाई, ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, देखो ये नाइट्राइल्स की RCN, तो in that particular structure on one side there is a nitrogen atom which is more electronegative, on other side there is the carbon, and carbon is further attached with the R group that is also containing the carbon with CH3 or the C2H5. So means here nitrogen atom which is more electronegative will acquire the slight negative charge, and the carbon atom will acquire the slight positive charge, and that carbon containing positive charge further attached with the R group, further attached with the R group is the carbon atom. So what is the net direction of dipole moment from positive to negative, तो इस कार्बन के ऊपर भी देखो, R वाले के ऊपर भी हमने स्लाइड पॉजिटिव चार्ज लगाया, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो देयर इज वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, आपके जो नाइट्राइल्स होते हैं, जो आपके साइनाइड होते हैं, इनके अंदर क्या है, हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है। नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या दिखा है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है,
और जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हाई वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी। तो द बॉन्ड मोमेंट एक्ट एज इन द सेम डायरेक्शन, इनके अंदर जो बॉन्ड मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन है इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई दूसरा इसके अंदर बॉन्ड मोमेंट है ही नहीं जो कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट दिखाए। सो वी डू नॉट कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसीलिए जो आपके अगर हम देखें आइसोनाइट्राइल में तो उसमें आप देख सकते हैं आपके जो सेंटर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, and on both side of nitrogen there is the carbon atom. On one side the carbon atom is with a triple bond, on other side there is an R group. So which is more electronegative? Nitrogen is more electronegative than the carbon. So nitrogen atom acquire the slight negative charge and the carbon atom acquire the slight positive charge. Similarly the R group which is attached with the nitrogen also acquire the slight positive charge. So what is the direction of dipole moment? Positive to negative. Positive to negative होगी इसकी डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन को हम देखो यहाँ पे ठीक करके लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव, देखो ऐसे शो करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन विल बी द फ्रॉम पॉजिटिव to negative. Similarly on other side that is positive to negative, direction will be positive to negative, means there is a cancellation effect. तो देखो ये जो अभी हमने ये टाइप्ड फॉर्म में आया ये हम हटा देंगे। देखो ऐसे जो मैंने पहले रेड कलर से ड्रा किया दैट इज द करेक्ट वन, जो ब्लैक कलर से आया दैट इज द रॉन्ग वन, ये नहीं शो करेंगे। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव है डायरेक्शन। तो मींस द बॉन्ड मोमेंट ऑफ टू NC बॉन्ड एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन means which cancel out the effect of each other to a large extent. So the net value of dipole moment is almost zero, यानी बहुत ही कम होगी। आप दोबारा से देख सकते हैं देखो, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट जो हमने यहाँ पे देखो फिर से जो मैंने शो किया आप इसको करेक्ट जरूर कर लेंगे। ये गलती से गलत रिप्रेजेंटेशन होगी। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू क्या होगी? नेगेटिव। तो जिसके अंदर कैंसिलेशन इफेक्ट होगा, एक NC बॉन्ड दूसरे NC बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलो किस में ज्यादा हुई? साइनाइड के अंदर, नाइट्राइल के अंदर, एज कंपेयर टू इन द आइसोनाइट्राइल। सो द नाइट्राइल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट देन द आइसोनाइट्राइल ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर को देखते हुए आप ये जवाब बड़ी आराम से दे सकते हैं। लेकिन साथ के साथ अब हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के साथ साथ, दैट इज अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड का? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, क्वेश्चन देखो हमने ऊपर लिखा द नाइट्राइल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोनाइट्राइल्स। व्हाई? क्योंकि as we know that there is a net value of dipole moment in case of the nitrile, while there is no net value of dipole moment in case of the isonitrile, or very low value of dipole moment in case of the isonitrile। isonitrile के केस में low value of dipole moment होगी, बहुत ही कम वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। तो इसलिए जो हाई डाइपोल जो इंटरेक्शन होगी वो किन के बीच होगी? इन बिटवीन द साइनाइड मॉलिक्यूल्स। So there will be the stronger dipole attraction. There will be the stronger dipole attraction in between the nitrile molecules than in between the isonitrile molecules, where there is only very weak dipole interaction. They come in the category of the weak van der Waals force of attraction, or you can say that there is the weak van der Waals force of attraction in between the isocyanide molecules, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द साइनाइड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो साइनाइड मॉलिक्यूल उनके अंदर नेट वैल्यू है, हाई वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, और जबकि आइसोसाइनाइड के अंदर वेरी लो वैल्यू होगी, लो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का। इसलिए साइनाइड्स मॉलिक्यूल के बीच में बोलो क्या हुई? स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन। और आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुई? वेरी वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट अपार्ट करना चाहें तो किस में हमें ज्यादा हिट देनी पड़ेगी? आपके जहां पे स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन थी इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो वो साइनाइड के बीच थी। सो द मोर हिट इज रिक्वायर्ड to break the stronger dipole attraction which are present in between the nitrile molecules than the weak van der Waals force of attraction which are present in between the isonitrile molecules. So the nitriles have the higher value of boiling point than the isonitriles. इसलिए जो nitriles हैं उनका boiling point higher होता है than बोलो किससे? आइसोनाइट्राइल से। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें पहला हमने देखा अबाउट द डाइपोल मोमेंट के बारे में, किस में हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है और किस में कम वैल्यू होती है, और उसी बेसिस के ऊपर हम ये बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन का जवाब दे पाए। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द classification of the nitriles, and then after there is
ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द IPAC नेमिंग ऑफ द नाइट्राइल एंड द आइसोनाइट्राइल, और फिर हमने ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखा आपके अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्राइल एंड द आइसोनाइट्राइल्स। थैंक यू।